Hmm. Hi, Juhi. Welcome to the session. Hello, ma'am. Thank you so much. Can you please give your introduction just to know you better? Ma'am, actually, right now I'm a PGT physics teacher from Jaipur, Rajasthan. Oh, great, great, great. Okay. So just Okay. because of a small baby, I have taken a gap right now. So just be in continuation and to get more about Excel and all. So Yeah, hence, that's really, it's required also. right, Good, good, hence good. join the session. Actually, all the things basics we know, but we look up and all the things are basically new and we are not much touch into it. Okay, okay, So okay. that's Great, a great, basically great. looking forward for it. Yeah, sure, sure, sure. Hope you will like the session. Yes, And ma'am. there will be a takeaway for you. Yeah. Let's wait for the other attendees to join for 5 minutes. Yeah, ma'am. Sure. Yeah. Hi Shweta, hi Antu, welcome to the group. Good evening, sir. Hi, good evening. We'll be starting. Give us a couple of minutes. We're waiting for people to join. Hi. Meanwhile, I requested all the attendees to please introduce yourself. Juhi has introduced. I just request everyone. I'm Sapna. Request all to please just introduce yourself to know you better. Hello, everyone. I'm Shweta Pandey, and I'm a computer teacher in a school. Okay, okay. You're a computer teacher. Okay, which grade?
9, 10th, 11, 12. Oh, 9, great, 10th, great, and great. 11, 12. Okay, okay, great, great, great. Please welcome. Anyone else want to introduce yourself? यस मैम। Yeah. मेरा नाम अंतु है। मैं एपीएस अखनूर से हूँ और मैं हिंदी की टीचर हूँ। 6th 7th 8th 9th को पढ़ाती हूँ। Oh, great, great, great. Welcome. So you are working on Excel? आप Yes, Excel ma'am. कराते हैं? Yeah. Oh, that's really Yes, great. Okay. Anyone else want to introduce? Okay, I'm introducing myself. My name is Sapna. I am a STEM educator. Also, technology is a part of a STEM. So it's really important to know all the technology. So Excel actually make your life easy when you are dealing with the exam sheets or the attendance, and there are much more with Excel. So we hope you all will enjoy the today's session, and there will be the takeaway for everyone. So Ankur Bhagwat, he is a speaker today. He is from the IT industry. He is IT director. So he knows how to use Excel in a very easy and a different manner. Great. Thank you, Sapna. So yeah, Ankur, you can start. I think we should start the session. Yep. I think there's one more joiner. We'll start. Hi all. Thank you for joining in. As Sapna mentioned, my name is Ankur Bhagwat. So I am a keen learner. She, being a STEM promoter, she always keeps on nagging. Why don't you impart what you learn to people to make their life easier? So here I am with the session for Excel. So first of all, मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूं so that everybody can chime in with us. And Excel आपको किस लेवल तक चाहिए? I mean, I need to understand. I want to make this session more meaningful. I need to understand what you exactly know and what additional you are looking forward from this session. We may go by the curriculum. We can go for the standard table charts, VLOOKUPs, and we can also do comparative analysis, some functions, sum if, average, pivots. We can cover everything. As many things as we can cover, I'll try to get this thing done. But specifically, if you think there is an area which you need attention to, so more than happy to help. Great. I think let's start. If you think कहीं पे मैं रुक रहा हूँ या कहीं पे आपको लगता है you need some inputs, ping us, let us know, and we'll try and support you as much as possible. Yeah. Hi. Anybody was speaking? No problem. Let me share my screen. Okay, great. So you must be familiar with the Excel environment, right? So I'll not talk much on it. What we'll do is, give me a second. Let me see if I can move this a little bit. What I've done is I've created some sample worksheets for you so that it makes your life easy, especially from a school standpoint, right? So the first thing that you see here, right? So I'll not take much of your time, but the first thing is the version, right? So the version that I'm currently using is the Office 365 version, and that is the latest one. So you can always check what version you are there when you open Excel, right? So you get an option. You get in the file, you get an option where you can check your version and everything of Microsoft Office 364 Enterprise is my version, right? So simple, when you start Excel, right, you come to this screen.
there are two ways to start something. Either I start fresh, or what I can do is कि मैं एक template, predefined template, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वो कैसा दिखेगा, क्या होगा. तो अगर मेरे को सिंपल एक चीज चाहिए कि एक टेम्पलेट से मैं शुरू करना चाहता हूँ, से फॉर इंस्टेंस अटेंडेंस शीट बनानी है मुझे, राइट? सो अटेंडेंस के लिए अगर मैं टाइप इन करता हूँ टेम्पलेट, विल आई बी एबल टू फाइंड इट? So what I'll do is I'll type it like this. It will search for online templates and it give me some of the samples. अगर मुझे कुछ पसंद आता है, I can pick it up. Say अगर मेरे को individual बच्चे की निकालनी है या individual kid की निकालनी है, I can pick those templates and I can alter them. So you create it and it starts. You can alter आपके हिसाब से कैसे करना है, क्या करना है, but this is one easy way of doing it. मेरा preference ये रहता है कि I start from scratch because then I can alter my sheet as per my requirement, right? Just bear with me for a second. Yeah. So when you come here, right? So I'll आपका बेसिक इंटरफेस ऐसा रहता है एक्सेल का, जिसके अंदर आपके ऊपर ये टैब्स रहते हैं, जिसके अंदर आपके फाइल, होम, insert, page layout, formulas, we call them as tabs, right? Basic information, and this is where everything that you need to do is available for you, right? अगर suppose मेरे को इसके अंदर और details चाहिए, so that these things below the tabs, we call them as ribbons. And ribbons are subdivided into groups which form a particular purpose. Say for instance, home के अंदर मेरे को advantage मिल जाता है that I can change my font size, font color, bold, italics, underline, text box को outline करने का option मिल जाता है, left line, right line. So all these basic functionality जो मेरे को frequently चाहिए, I get it there, right? Plus I get the option to select the formatting, be it number system, be it percentage, whatever formatting I need to select for a particular thing, I can do it from this, right? That is one. Now, if I need to go a little further and do a little more of my this thing, so this is called as additional setting within this ribbon groups. हर एक आपके जो रिबन आइटम के अंदर एक डाउन एरो दिखेगा आपको, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इफ आई हैव टू डू फर्दर ड्रिलिंग और फर्दर से कस्टमाइजेशन टू व्हाट आई एम राइटिंग, राइट? जो कि यहाँ पे अवेलेबल टू एन एक्सटेंट होता है, जैसे फॉन्ट साइज अवेलेबल है, फॉन्ट अवेलेबल है, बट दी स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, underline, alignment, I can also align my text as per the angle. So this some of the advantage I can get from this additional expanded menu. इतना clear है? All right. So now coming to this page, right? So if I look at this page, इसके अंदर simple we call this as a worksheet, right? This page is my work area. So every thing that I'm clicking right now, these are called cell. हर cell का एक address होता है. That cell address is identified by that column name and by that row name. So if I'm clicking here and selecting a particular cell, ये है, how will I name that cell? I will name it as C3. Why we need to name the cells is because if I have to perform a function or if I have to do some calculation, how will I select those cells? I should have a name to it, right? Let's just bear with me. There are two people in the waiting room. I'm admitting them. Great. So this is how I do that, right? So a collection of cell, right, is called as a range. If I select a group of cells, then this becomes a range. So that range को मैं कैसे calculate करता हूँ? The starting point, which is the C3, to the end point, which is my F7. So this gives me the entire range of these cells, right? Any questions till now? Great. So what I've done is I've done some simple sheets for you. We can begin those exercise with those sheets, right? So what I've done is I've done one simple sheet, which is say for instance, if I have to calculate marks for a people for the number of students, right? What I'll do is I've taken student names. I have subdivided into
periodic test and term exam. You can calculate as per your requirement. So what I've done is I've done this exploration and filled this entire sheet there. What here I'm doing is one is like if I remove all the formatting from this, right? So what I'll get is, okay, let's start with something simple, right? So how I navigate with these cells, right? Two ways to do it. One is I use the up arrow and down arrow key, right? So, and right arrow and left arrow keys to navigate between these cells. But if your scroll lock is enabled, then this will not work. अगर आपका scroll lock enable है, ये नहीं चलेगा. तो what you do is if you need to go down to the sheet, आप enter दबाते हो. Enter से आप नीचे जाते हो और shift enter से आप ऊपर आते हो. This is how you navigate. And tab से आप right में जाते हो और shift tab से आप left में आते हो. These are the first steps, right? अगर मेरे को किसी चीज को edit करना है, if I have to edit any field, if I write something here, it will get overwritten, right? If I have to edit anything, I will do simple F2. That is the shortcut to it. F2 allows me to go inside the cell and edit it. या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? This bar, right? This is the formula bar. यहाँ पे I can do the changes and then press enter. Olivia is say it will come automatically. These are the two things which you can do, right? Then what I can do is if I have to select multiple cell, ठीक है? तो अगर मेरे को दो तरीके हैं, या तो मैं आपका एक एक करके जा सकता हूं, या मुझे अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है ये पूरी रो की, तो मैं सिंपल दबा सकता हूं शिफ्ट बटन, कंट्रोल और डाउन एरो. ये फिर से करते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल एंड डाउन एरो. ये मुझे हेल्प करेगा पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने में जहां तक मेरी वैल्यूज डली है. सेम यही मैं रो के साथ कर सकता हूं, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, राइट, या शिफ्ट कंट्रोल, सॉरी गिव मी अ सेकेंड, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो. ये मुझे पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करने देगा. अगर ये मुझे पूरी शीट सिलेक्ट करनी है, से मुझे यहां से कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जानी है, ठीक है? एक तरीका ये है, मैं पूरी वर्कशीट करना चाहता हूं या मैं एक टेबल करना चाहता हूं, ठीक है? अगर मैं एक वर्कशीट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो और ये राइट एरो. इससे मेरा ये पूरा टेबल कॉपी हो जाएगा. कॉपी मतलब सिलेक्ट हो जाएगा. इसको मैं कॉपी कर सकता हूं. कॉपी करने के दो तरीके हैं, या तो राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, या मैं कंट्रोल सी दबा सकता हूं. कंट्रोल सी मेरा शॉर्टकट है कॉपी करने का. इसको मैं ले गया नई वर्कशीट में और मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूं, ठीक है? ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है, अगर मेरे को पूरी वर्कशीट कॉपी करनी है तो मेरे को वर्कशीट कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक जो इनका पिवटल एरिया है which is called as 1 and A का जो pivot है, if I select that, that will allow me to select the entire worksheet. Then I can either clear it, what I can do is right click, delete the worksheet. It will delete the worksheet. Or I can simply copy the worksheet, move it to a new table and then paste it. So Control C for copy and Control V for paste, right? Control C for copy, Control V for paste. ये होगी सिंपल चीज. अब हर सेल को अगर मुझे एडिट करना है किसी भी एंगल से, राइट, से फॉर इंस्टेंस मेरे सेल ये ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए, राइट, तो चढ़े हुए ये, ठीक है, एंड आई नीड टू फॉर्मेट इट, राइट. एक तरीका तो ये है कि मैं एक सेल को पकड़ूं एंड देन आई ड्रैग इट टिल द टाइम आई कैन सी थिंग्स विजिबल. एक तरीका ये है, ठीक है. दूसरा तरीका ये है कि आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, और जब मेरा पॉइंटर ये प्लस साइन बन जाता है ऊपर, आई कैन सिंपली डबल क्लिक, जिससे कि हर एक
सेल की फॉर्मेटिंग उसके कैरेक्टर विड्थ तक हो जाएगी, राइट। एक बार और करके दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरा ये सेल ओवरलैपिंग आ रहे हैं, इफ आई कॉपी डेटा इट इज कमिंग एज ओवरलैपिंग। इवन मेरे रोज भी ऐसे आ रहे हैं, चलिए रोज भी ऐसे आ रहे हैं, ओवरलैपिंग आ रहे हैं। अब मैं इनको एक एक को उठा के मैं कर सकता हूँ, या बेस्ट इज मैं एक बार इनको, ये प्लस साइन बनने का कारण ये होता है आई कैन एडिट दैट सेल, दैट रो, दैट कॉलम। जब मेरा ये मोटा वाला प्लस साइन बनता है इसका मतलब ये होता है आई कैन सिलेक्ट दैट सेल, right? I can hover upon that cell, I can select that cell and I can edit it by pressing Alt F2 या double click on that cell, या तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। बट जहां मेरा ये पतला वाला प्लस बना which means I can edit that cell, right? तो अगर मेरे को ये सारा करना है, दो तरीके हैं, या तो मैं ये कॉलम को सारे सिलेक्ट करूं एंड देन डबल क्लिक, पर इससे मेरी रो नहीं होती, राइट? इससे मेरी रो नहीं होती। अगर मेरे को पूरे टेबल को फॉर्मेट करना है प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, ये पिवट को पकड़ा एंड देन डबल क्लिक हियर एंड डबल क्लिक हियर, डन एंड डस्टेड। मेरी दोनों चीजें फॉर्मेट हो गई अपने आप। Just bear with me for a second. Think somebody is there. नहीं? Okay, great. So ये एक तरीका हुआ, राइट? चलिए शुरू करते हैं दो तीन चीजों से। नाउ अब हम शुरू करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज से। बेसिक फॉर्मूलाज क्या रहेंगे? सम, एवरेज, काउंट, राइट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये हमारे बेसिक फॉर्मूला हो गए। तो कुछ नहीं करना, आप सपोज मेरे पास एक शीट है, एक काम करते हैं अटेंडेंस वाली लेते हैं, ठीक है? नहीं, अटेंडेंस वाली में तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम आएंगे उस पर नेक्स्ट, राइट। तो अगर सपोज ये मेरी एक शीट है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक रैंडम नंबर्स लिए है, रैंडम क्लासेस ली है, रैंडम मार्क्स डाले हैं, एंड व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि एक मेरे फाइनल मार्क्स का टोटल क्या है और उस बंदे की परसेंटेज क्या है, और उसके बाद एक ग्रेडिंग सिस्टम उसको दिया गया है कि कैसे होती है, राइट? कि अगर सपोज एक परसेंटेज फॉर इंस्टेंस 50 एंड बिलो है, इज अ ग्रेड सी, सॉरी 60 और 70 एंड बिलो है, इट्स अ ग्रेड सी, 70 to 85 is a grade B and 85 and above is a grade A. That's where the grading system goes. हम इसको ऑटोमेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे आई विल जस्ट सिंपली डिलीट। दो तरीके हैं करने के, मेरे को किसी का सम करना है। सम फॉर्मूले का सिंपल रूल होता है, दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू का साइन लगाते ही एक्सेल को पता चल जाता है ये कोई टेक्स्ट या नंबर नहीं डाल रहा है, ये एक फॉर्मूला बना रहा है, विच मीन्स कि इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा इट विल अपने आप कम हियर। सो द एडवांटेज ऑफ दिस एक्सेल इज, अगर आपको नहीं भी पता, इट गिव्स यू ऑप्शन, राइट? हम इस पे भी जाएंगे, हम अभी सिंपल सम करने की कोशिश करते हैं। सम एफ एफ एस, ये दो चीजें बहुत काम आती है जब आप मल्टीपल शीट्स और मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करते हैं। विल टॉक अबाउट इट आज के सेशन में, ठीक है? आपको लगे अगर मैं कहीं तेज जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बीच में मुझे रोक सकते हैं, आई विल रिपीट। अगर लग रहा है कि ओके है, देन लेट्स कंटिन्यू। तो सपोज मेरे को यहाँ पे सम करना, तो सिंपल फॉर्मूला ये रहता है, इज इक्वल टू सम, सिंटेक्स ये रहता है, आप सम लिखेंगे, फिर वो कहता है ब्रैकेट डालिए। ब्रैकेट डालने के बाद वो आपको अपने आप ही ऑप्शन बताता है। एक्सेल का एडवांटेज ये है कि इट गिव्स यू द ऑप्शन वेरी क्लियरली, इट इज जस्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई करना है। कह रहा है नंबर 1, आप मुझे बताओ कौन सा नंबर देना आपने सम के लिए। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, ये PT1 नंबर ले लो। अब कहता है ठीक है, अब नंबर 2 दो। अब नंबर 2 में अगर ऐसे सिलेक्ट करूंगा ना तो वो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है जब आप एक नंबर डाल चुके हो तो भैया उसको कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने से ये होता है कि वो आप तैयार है दूसरा नंबर लेने के लिए। फिर वो कहता है कि और चाहिए, हम कहेंगे और चाहिए भाई, टर्म 1 के भी मार्क्स चाहिए मुझे और टर्म 2 के भी मार्क्स चाहिए। चलो इसका सम करके दिखाओ मुझे, ठीक है? अब
कोई भी फंक्शन या कोई भी आप फॉर्मूला लगाते हैं उसको हमेशा आपको ये जानिए, अगर उसके अंदर ब्रैकेट शुरू होता है, जब तक आप ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे वो फॉर्मूला अधूरा है। ही विल नॉट अलाउ यू टू सम। ठीक है, इसको जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये मुझे आंसर दे देगा, राइट। अच्छा, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा। तो दो तरीके हैं मेरे को ये करने के, या तो मैं इस सेल को एडिट करूं या मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, सम ब्रैकेट में PT1 के मार्क्स, PT2 के मार्क्स, कॉमा टर्म 1 के मार्क्स एंड टर्म 2 के मार्क्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू देगा मुझे, राइट। ये एक तरीका है सम निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है जिसमें अगर मेरे को मल्टीपल जगह से, मेरी एक पूरी रेंज नहीं है, मेरे को मल्टीपल जगह से चाहिए, तो सिंपल करूंगा इज इक्वल टू, सबसे इंसान वाला तरीका, प्लस, इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे प्लस लगाया, खत्म कहानी। ये भी सम की वैल्यू देगा आपको। ठीक है, एक और तरीका है सम करने का, अगर मैं इसको रेंज दे दूं, सम फंक्शन वही है, यहाँ पे किया मैंने रेंज, अगर मैंने इसको रेंज दे दी ये, या अच्छा रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं, सॉरी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। कोई भी मुझे एक सेल का रेंज लेनी है तो मैं वहां पे माउस रखता हूँ, क्लिक, मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड देन मैं ड्रैग करूंगा उसको जहां तक मेरे को वो रेंज सिलेक्ट करनी है, राइट। जहां तक मुझे वो रेंज सिलेक्ट करनी है मैं उसको ड्रैग करके फिर छोड़ूंगा, एंड देन आई क्लोज द ब्रैकेट। इससे क्या होगा, मुझे ये पूरी रेंज का ये सम दे देगा, राइट, 243। क्योंकि हम, अच्छा इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं वेरिएशन, अगर मुझे रेंज ही लेनी है बट मुझे उसमें एक गैप देना है, से फॉर इंस्टेंस मुझे 80 नहीं लेना क्योंकि 80 तो टोटल मार्क्स है उस टर्म के, तो मैं क्या करूंगा, ये दो को एज अ रेंज सिलेक्ट किया, कॉमा ये दो को एज अ रेंज सिलेक्ट किया, राइट। या तो मैं चारों को कॉमा कर, ये तो 4 नंबर है इसलिए हमें लग रहा है कि हम कॉमा करके क्यों ना लिख दे या हम प्लस प्लस करके क्यों, बट अगर यही 100 नंबर हो, 200 नंबर हो, मल्टीपल कॉलम्स हो, तो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि यू कैन कट शॉर्ट एंड सिलेक्ट द रेंजेस। एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इन दोनों का सम लेना है, मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर को पकड़ के रखा है, क्लिक करके रखा है, देन आई ड्रैग इट टू द सेकंड कॉलम, यहाँ मैं माउस पॉइंटर को छोड़ दूंगा, ये मेरी एक रेंज आ गई। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट द अदर रेंज, कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने फिर से माउस पॉइंटर सॉरी, यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर पकड़ा, एंड देन आई ड्रैग्ड इट टू द सेकंड वन, राइट, ये मेरा सेकंड रेंज आ गई। हाउ डू आई क्लोज इट, ब्रैकेट एंड एंटर, डन, सिंपल, ये हो गया, राइट। अच्छा, अब मजेदार चीज आपको एक और बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक्सेल में आपको मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे करना है बिटवीन, सो कंट्रोल अगर आप दबाते हो और डाउन एरो दबाते हो, यू रीच द बॉटम ऑफ द पेज, कंट्रोल एंड अप एरो दबाते हो, यू रीच द टॉप ऑफ द पेज, कंट्रोल एंड राइट दबाते हो, रीच द राइट एंड ऑफ द पेज, एंड कंट्रोल और बॉटम दबाओगे और राइट दबाओगे टू रीच द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पेज। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज काम आती है जब मेरे को शीट में टॉगल करना होता है, राइट। अच्छा, अब एक मजेदार चीज करते हैं, अगर मेरे को करना है कि मेरे टोटल बच्चों के कितने मार्क्स आए, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊं फॉर्मूला सम, SUM, सेम फंक्शन, ब्रैकेट बंद किया। एक तरीका ये है, मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर ले गया एंड देन शिफ्ट दबा के मैं ऊपर तक ड्रैग करके ले जाऊं यहाँ तक, ये मेरी सिलेक्शन करने का तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, ये पूरी मेरी इस कॉलम की सम दे देगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, ये एक तरीका हो गया। एक बार फिर से करते हैं, सम, ये ब्रैकेट डाला, मैंने सिलेक्ट किया ये पहला कॉलम, शिफ्ट दबा के अप एरो दबाते हुए मैं आगे ऊपर तक जा सकता हूँ, राइट, या इज इक्वल टू ये सिलेक्ट किया, देन माउस पॉइंटर को क्लिक करके, सॉरी माउस पॉइंटर को क्लिक करके आई कैन ड्रैग
ऊपर तक जहां तक मुझे इसको ले जाना है। दो तरीके, या तो शिफ्ट दबा के आप एरो दबा सकते हो जब तक आपने जाना है, या माउस को क्लिक करके आप ऊपर तक जा सकते हो। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। तीसरा तरीका एक और है, अगर मैं ये लिखता हूं, ये मैंने सेल सिलेक्ट किया, राइट, ओके, इस मीटिंग 10 मिनट्स में ओवर होगी, तो व्हेन से गेट डिस्कनेक्टेड हम रिकनेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि मैं आपको पिवट और चार्ट्स एक बार बताना चाहूंगा, राइट। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये शॉर्टकट है एंड फास्ट मेथड है। कंट्रोल और शिफ्ट अगर आप साथ में दबा के रखते हैं एंड देन अप एरो की दबाते हैं, ये पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट कर लेगा, राइट। एंड शिफ्ट को आप फिर छोड़िए ऊपर जाके, और फिर एक नीचे एरो, सॉरी, ये कॉलम सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल को छोड़िए और एक नीचे एरो कीजिए, ये आपकी पूरी सेल वैल्यू दे देगा। सेम रिजल्ट, क्विक एंड इजी। अच्छा, ये एक और मजेदार चीज है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट और दिखा देता हूँ, सॉरी, ये करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, सम, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे करने में, राइट। यहाँ से भी आप ले सकते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पे और फंक्शंस मिल जाते हैं, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम। यू हैव टू टेक एवरेज, ये मुझे पूछेगा एवरेज, तो ये पूरे सेल की एवरेज। अगर मैं ये दो ब्रैकेट डालता हूँ, विच मीन जहां तक सेल रेंज है ये अपने आप उठाएगा, सॉरी, इसको मुझे ब्रैकेट स्पेसिफाई करके ये फॉर्मूला मुझे अपने आप ये देगा, राइट। ये तो हुआ बेसिक फॉर्मूला, सम, एवरेज, काउंट। सेम ही काउंट का फंक्शन होता है, इज इक्वल टू काउंट आप करेंगे तो मुझे देगा कितनी मेरी वैल्यूज की काउंट है, स्टार्टिंग एंड एंड, सब फॉर्मूला का सिंपल फंक्शन की 50 कॉलम्स है आपके पास, राइट। ये सम नहीं देगा। ये हो गया एक तरीका हमारा, सम क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू परसेंटेज। परसेंटेज में क्या रहता है, आपको बेसिक मैथ्स है कि सपोज एक नंबर में से आपके x नंबर आए हैं, तो 100 में से कितने, राइट, और यू डिवाइड द नंबर दैट यू हैव अटेन्ड डिवाइडेड बाय द होल नंबर एंड यू सिलेक्ट द परसेंटेज। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल, इज इक्वल टू, यहाँ का परसेंटेज निकालना है तो मुझे 137 को कितने में से डिवाइड करना है, 200, राइट। एक काम करते हैं, इसको पहले बेसिक सेल बनाते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू 137 को 200, पर ये तो परसेंटेज दे नहीं रहा, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करूं। तो जब भी आपकी ऐसी वैल्यू आती है, यहाँ पे सिंबल होता है आपके रिबन में परसेंटेज स्टाइल, जिसके साथ एक परसेंटेज का मार्क भी आ जाएगा, तो ये अपने आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। या मैं दूसरा तरीके से, मैं इस सेल को अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और एक फॉर्मेट सेल में जाता हूं, नंबर में मेरे पास एक परसेंटेज का सेल कैटेगरी होती है, फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कितने डेसिमल तक मेरे को परसेंटेज चाहिए, राइट। ये एक तरीका है। तो सिंपल, दिस डिवाइडेड बाय 200 एंड इट विल गिव मी द परसेंट। यहाँ पे 2 डेसिमल क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया पे पॉइंट। ये वहां जाने के बजाय मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर सकता हूँ। ये जो दो आपके कैट दिख रहे हैं, ये टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द डेसिमल वैल्यूज है। तो अगर मेरे को डेसिमल बढ़ाना है फॉर एक्यूरेसी, आई कैन सिंपली क्लिक 1 फॉर सिंगल डेसिमल, आई कैन क्लिक अगेन फॉर 1 मोर डेसिमल एंड आई कैन गो एंड जितना मर्जी में जा सकता हूँ। नॉर्मली हम वैल्यू 2 डेसिमल तक रखते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी। अच्छा, अब मैं हर सेल में फॉर्मूला टाइप करूं, ये तो सही नहीं है भाई, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला मेरे को इस रो, इस कॉलम या इस सेल में भी दिखे, तो एक तरीका तो ये है, इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे कॉपी कर दो या ऊपर वाला सेल कॉपी कर दो, ठीक है। अगर उस सेल में वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब जैसे ये नंबर्स डाले मैंने, वो वैल्यू देगा। अब वो कैसे पता चलता है कि वैल्यू है या फॉर्मूला है, जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, इस फॉर्मूला बार में मेरे को वो नंबर दिख रहा है, वो मुझे फॉर्मूला नहीं दिखा रहा। सेम हेयर, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला, विच मींस इट विल रिटर्न द वैल्यू जो कि इस फॉर्मूला में लिखी गई है। एक्सेल का एडवांटेज ये है कि हर कॉलम के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है आपका,
वो क्या करेगा, वो भी इंक्रीमेंट करेगा वैल्यूज को, विच मीन्स कि अगर ये कॉलम में मैंने E6 और F6 को ऐड किया है और H6 और I6 को ऐड किया है, अगर ये फॉर्मूला मैं नेक्स्ट कॉलम में डालूंगा, वो क्या करेगा, वो E7 और F7 को ऐड करेगा और H7 और I7 को ऐड करेगा, बिकॉज वो फॉर्मूला कॉपी कर रहा है और वैल्यूज नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये कंट्रोल C किया और ये कंट्रोल V किया। ठीक है, तो इसने अपने आप ये ले लिया E7 और F7, H7 और I7। ये फॉर्मूला कॉपी करने का एडवांटेज है। अच्छा, एक तरीका और है, मैं या तो इज इक्वल टू करके ये ऊपर वाला कर दूं, राइट, तो इसने भी फॉर्मूला कॉपी कर लिया, पर क्या फॉर्मूला कॉपी किया है? नहीं, इसने वैल्यू कॉपी करी है। हाँ, एक मिनट रुकिए, ये नंबर, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा हमें, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरे को चेक करने दीजिए कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। नहीं, 3 मिनट्स रिमेनिंग है, तो जैसे डिस्कनेक्ट होता है हम फिर से कनेक्ट होते हैं, राइट। अच्छा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मेरे को ऊपर से फॉर्मूला कॉपी करना है, तो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट सेल में आई विल डू कंट्रोल डी, ये मेरा फॉर्मूला कॉपी करेगा। कंट्रोल डी मींस जो फॉर्मूला ऊपर या जो वैल्यू ऊपर है वो मुझे नेक्स्ट सेल में दे दे, ये कंट्रोल डी। यही अगर मुझे नीचे तक कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी एंड देन पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक ले जाके, यहां तक ले जाके एंटर। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, जो फॉर्मूला इस सेल में है वो ऑटोमेटिकली जो मेरी सिलेक्टेड कॉलम्स है उसमें हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ये तो बात हो गई रे। अब मजेदार चीज करते हैं, 2-3 चीजों को एक काम करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज किए हैं, राइट, मैंने सम बता दिया आपको। अब आता है सम इफ, सम इफ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सम इफ, दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक सम इफ होता है, एक सम इफ एस होता है, राइट। ये दोनों का मैं अभी डिफरेंस बताऊँ, ये बहुत काम आएंगे आपको जब आप मल्टीपल स्प्रेडशीट्स के साथ काम कर रहे हैं। सम इफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड सम इफ एस, राइट। दोनों में फर्क क्या है वो भी बताता हूँ आपको। सपोज ये मेरी स्प्रेडशीट है, एक मैंने रैंडमली बनाई है, कोई स्पेसिफिक उसको लेके नहीं, बिकॉज आई वांटेड टू शो इसको हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इन फॉर्मूलाज के साथ। सम इफ में ये रहता है, सपोज ये मेरे स्टूडेंट्स है कुछ, ये अलग अलग क्लासेस में है, ये उनके टर्म मार्क्स है, और ये टर्म मार्क्स 2 है एंड देन टर्म मार्क्स 2 है, ये अलग अलग टर्म्स के मार्क्स है और ये अलग अलग क्लासेस में है, राइट। एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक शीट और थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के थे, गिव मी अ सेकंड, लेट मी पुल दैट शीट, जिसमें क्या होगा आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और हाँ, ये वाली शीट में आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाएंगे। अब सपोज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स है और उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है, राइट। अब मुझे क्या पता करना है, फॉर इंस्टेंस 5th क्लास में, राइट, एक पर्टिकुलर बच्चे के 5th क्लास में मैथ्स में कितने मार्क्स आए, या 5th क्लास में साइंस में कितने मार्क्स आए, राइट। तो मैं कैसे बनाऊंगा इस फॉर्मूला को, या तो मैं यहाँ पे करूँ होम, सॉरी, डेटा डेटा फिल्टर, यहाँ पे मैं करूँ 5th क्लास, ओके, फिल्टर करके मार्क्स यहाँ पे मैं करूँ साइंस, एंड मैं यहाँ पे इन दोनों को सम करूँ, राइट। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका है सम इफ से, राइट, उसका सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट में, ये क्या बोलता है, रेंज। रेंज मतलब मैं कहाँ पे क्राइटेरिया, मतलब मेरी किस क्राइटेरिया पे आपने सम करना है। मेरे को चाहिए 5th क्लास के मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, तो मैं रेंज लूंगा, ये क्लास वाला पूरा जो कॉलम है वो मैं रेंज लूंगा, राइट। ये मेरी रेंज आ गई। अच्छा, अब वो कहता है क्राइटेरिया क्या है आपका,
मेरा क्राइटेरिया है मुझे 5th क्लास को करना है, तो क्राइटेरिया मेरा सिलेक्ट करूंगा 5th, राइट। एंड वो कहेगा कि अब सम रेंज क्या है, मेरे को सम क्या करने हैं, मार्क्स, तो मैं फिर करूंगा कॉमा और ये मार्क्स को मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा।